السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوگا مرکب اشاری. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارا پچھلا ٹاپک جو تھا مرکب جاری، اس میں چند اہم چیز رہ گئی. وہ خاص طور پر کہ میں نے ایک کیسٹ وہ ویڈیو دیکھی ہے. اس میں کوئی کینیڈا کے آدمی ہیں، تو وہ نا کسی حافظ، بہت سے حافظ کو بٹھا کے نا وہ اپنا وہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ فلاں پڑھیے آپ اور اس کے معنی دیکھیے کیا لکھا ہے، اور فلاں سے پڑھیے اس کے معنی دیکھیے اس کے معنی یہ کیوں نہیں ہے، یہاں پہ کیوں ایسے. اصل میں ہر زبان کی اپنا ایک ادائیگی ہوتی ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ دوسری چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. آج تک دیکھیں کہ میں نے یہاں ہمیشہ میں پڑھاتے ہیں، میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے ٹیک معنی ہوتا ہے لینا، لیکن اس کے ساتھ پریپوزیشن ٹیک اوور ہوتا ہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. ہاتھ اٹھایا اردو میں، ہاتھ اٹھایا تو دعا کے لیے بھی اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھایا تو مارنے کے لیے اٹھا سکتا ہے. اس کے مفہوم چینج ہو جاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو تھا وہ مستقل، وہ چونکہ حافظ تو تھے، وہ فوراً وہاں سے بتا دیتے تھے یہاں سے پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے. تو کیونکہ معنی ان کو آتے نہ ہوں اس لیے زیادہ وہ کر نہیں سکتے تھے. وہ مطلب کہ وہ حاوی ہو رہے تھے ان پہ، یا انہی کے آدمی ہوں گے پتہ نہیں. تو میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا رکھا اس لیے تاکہ یہ بتا سکوں کہ جیسے ہمارے پریپوزیشن وہ کرتی ہے، اسی طرح ہمارا جو حرف جار جو ہے وہ معنی تبدیل کر دیتا ہے. تو ایک دفعہ ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یاد کرنے کے لیے ہو تک بے، واو، تے، لام. کس کس کو یاد ہے؟ بے معنی ساتھ، تے معنی قسم اللہ کی، واو تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اسم جو ہے مجرور ہو جاتا ہے، زیر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لام سے، لام معنی لیے یا کے، زیر سے لیے یا کے لیے والا ہوتا ہے. پھر یہ کا معنی کی طرح کی معنی کمپریزن ہو، تو جیسے شعر کی طرح میں نے بتایا تھا. من معنی سے، ان معنی بارے میں، فی معنی پر ان، اوپر، فی معنی میں. اچھا. الا معنی اوپر، الا معنی تو یعنی کو. ٹھیک ہے. کی طرف کی معنی آتا ہے. اور کون سا رہے گا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، اور یہاں تک کہ، اور ماں بھی ہوتا ہے. من اینڈ ماں 12 ہو جائے گا تقریباً. یہ حروف ہے تقریباً. میں نے ایک عرب کی ویڈیو دیکھی تو وہ کہہ رہا تھا 13,000 ہے. ہم تو 8,500 کہتے تھے. اس نے کہا اس کا استعمال 13,000 یعنی جو 12-13 حروف ہیں یہ 13,000 مرتبہ قرآن میں آتے ہیں. بہرحال آئیے ایک چیز وہ کرنا. پھر یا آپ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ختم اللہ. ختمہ کے معنی ہے کمپلیٹڈ. ختم القرآن، قرآن کمپلیٹڈ ہو گیا. ہم نے پھر شروع کریں گے. تو ختمہ کے ساتھ جب الا آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے سیل کر دینا، مہر لگا دینا. سیل کر دینا یا مہر لگانا. اسی طرح تبا
तबाह के बाद भी अगर अल्लाह आएगा तो सील कर देगा या बिलहक इसके माने क्या होगा नहीं है खत्म अल्लाह अला कुल्ली अल्लाह ने उनके दिलों को सील कर दिया मोहर लगाई ठीक है बिलहक मैंने एक पिछली क्लास में पढ़ा के बताया था कि बहुत से मुकद्दम कर देते हैं उसको हर्फ जार को और ताकि वो ताकीदी हो जाए जिसका तो यहाँ बिलहक के अनजलना हूँ असल में अनजलना हूँ बिलहक को होना चाहिए लेकिन ताकीद है इसलिए बिलहक हक मन सच या साफ या हक के साथ उतारा हमने गया उसको नाजिल किया इन्ननी मिनल मुस्लिमीन इन्ना आप पढ़ेंगे बाद में जब वो ना हम इन्ना पढ़ेंगे इन्ना माने बेशक होता है ये भी ताकीद है इन्ना नी बेशक में मिनल माने से मिनल मुस्लिमीन ये मुस्लिमून था मिन की वजह से ये घर में चला गया मुस्लिमीन मुस्लिमून मुस्लिमीना मुस्लिमीना और इसके माने जो है चेंज होते हैं मुस्लिमून के माने सब मुसलमान सारे मुसलमान और मुस्लिमीन के माने भी सारे मुसलमान मानी यानी शक्ल की चेंजिंग तो होती है लेकिन उसके माने में तब्दील नहीं होती एक जो कराऊंगा ताकि यह क्या उसको वो भी कराना अखरजा मिनल समराते रिज़्क़न लकुम अखरजा निकाला खरजा निकला अखरजा निकाला मिनल समराते फलों में से जेर आ गया नींद की वजह से मिनल समराते रिज़्क़न लकुम तुम्हारे मफूल बन गया रिश्ता जो हमने रिज़्क़ तुमको दिया ठीक है ये देखिए वा लहू मन फिस समावात वाला वा लहू और उसका हम नाने कहते हैं लहू यहाँ क्या होता है कि के लिए के लेकिन क्योंकि ये शुरू में आता है तो इसके माने का के भी माने आते हैं बहुत सी इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे हम कह रहे थे आमना के साथ भी प्रोपोजिशन आती है आमंतु बिल्लाही मैं अल्लाह पर ईमान लाया अब आप यहाँ देखेंगे इसके माने तो 7 और से हैं लेकिन वो माने चेंज हो जाते हैं प्रीपोजिशन की वजह से आमंतु ये आप पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे लेकिन मेरे जहन में आया तो मैंने इसलिए कहा कि ताकि वो वीडियो आम हो रही है हो सकता है आप सुने तो कहीं यार ये क्या है इस तरह आदमी बहक जा सकता है इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको इतना अच्छा नहीं किया और उसी का है जो कुछ आसमान अब देखिए बिल्लाह अल्लाह के लिए है ये मानी ऐसे होगा अगर आप करेंगे लेकिन वो लिल्लाही हमने पहले मुक़द्दम किया इसको जी को तो लिल्लाही मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाह का ही है अल्लाह के लिए अल्लाह का है मशरिक़ और मग़रिब ये देखिए इसका मैं बस इसके बाद भी आखिर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है क्या तर्जुमा करेंगे आप तमाम तारीफ अल्लाह के लिए तमाम हम जो है अल्लाह के लिए और तमाम का जो है असल में ये ख़ास बहुत जगह लिखा होता ख़ास तारीफ जो है अल्लाह के लिए लेकिन अंग्रेज़ी दोनों में भी और ये जो हमारा डेफिनेट जो होता है उसके माने जो होते हैं जैसे हम कहते हैं दी काऊ ईट्स ग्रास तो कोई ख़ास गाय घास नहीं खाती हम कहेंगे तमाम गाय घास खाती इसी तरह जब अल लगता है तो अल के माने ख़ास ज़रूर होता है लेकिन अल के माने तमाम भी आता है तो इसमें भी तमाम तारीफ़ें या तमाम हम अल्लाह के लिए ठीक है खलका ये तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल में खलका उसने बनाया उसने पैदा किया इंसान को ज़बर है मफूल बन गया इंसान को मिन अलाकिन उनके लोथड़े से जब में अपनी ठीक है अलाकिन मिन की वजह से ये अलाकिन होता है यहाँ जो अल आ रहा है ये भी तमाम के लिए आ रहा है अल इंसान हाँ अल इंसान तमाम बनाया तमाम इंसानों को मिल अलग अभी मेरे ख्याल में ये खूब पढ़ लेंगे आप बिल काफरीन काफिरीन अज़ाबुल फी पहले का मुकद्दम कर दिया इसको फी यानी 4 को तो
फी क़लूबि मर्ज़ुन, उनके दिलों में मर्ज था। एक मर्ज़ मर्ज एक मर्ज़। या सलूना का अन माने था बारे में, या सलूना का अनिरूही, क्या माने? वो लोग पूछते हैं ये असल में आपने पढ़ा नहीं है। सलूना का माने वो पूछते हैं आपसे, रूह के बारे में। तुझसे, ठीक है, रूह के बारे में। और उसका अगर आप थोड़ा सा वो भी कर लें, या सलूना का अनिरूही कुल रूह मन अमरे रखी ममा उठी तुम मुझे नहीं खरीदा। रूह जो है अल्लाह का एक हुक्म है, और इसका इल्म हमने बहुत थोड़ा दिया। आप देखिए तरक्की कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आप रूह के बारे में कोई भी साइंसदान या कोई इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं कर सकता है। बहरहाल यहाँ तक मैंने इसे बुक कर लिया था ताकि पिछला भी थोड़ा सा टच हो जाए। और आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब इशारा। इशारे से आपको जैसे पता चलता है कि इशारा किसी तरह पॉइंटिंग टू इशारा, हम भी उर्दू में भी इशारा कहते हैं। तो इशारा हम उर्दू में कहते हैं ये और ये दोनों एक जैसा है, यानी कि मुज़क्कर के लिए भी ये, मुअन्नस के लिए। लेकिन अरबी ज़बान में औरत के लिए अलग, मर्द के लिए अलग, दो के लिए अलग, दो औरत के लिए अलग, और जमा के लिए एक जैसा होता है। तो ये को कहते हैं हाजा। मुज़क्कर का हाथ है मेरा, ये याद है आपको, दायां हाथ और बायां हाथ मुअन्नस। हाजा ये, हाज़ी ये मुअन्नस, हाज़ी 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 ही आई, सही हाज़ी, सही। ठीक है, हाज़ी हाजा। फिर से इशारा करें ताकि आपको याद। हाजा हाजी हाजा 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 हाजी हाजा 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 हाजी आपका जो है इधर होगा, हाजा इधर हाजी हो गया। अच्छा, अब दो के लिए करें, हाजाने हातानी हाजाने नहीं, हाजानी हाजाने हातानी, हाताने हाजानी हाताने आने की साउंड आ रही है और ताने की साउंड आ रही है। हाजानी हाजाने हातानी हाताने हादानी हातानी, हाताने तानी औरत के लिए दो की साउंड आती है, और आने की साउंड है मर्द मुज़क्कर के लिए आती है, वो मौजूद है। अच्छा, और हा उलाई जो है ये वो लोग हैं, ये मर्द वो के लिए लोग भी हैं। औरत के लिए दोनों के लिए हा उलाई। मतलब ये वो लोग हैं, ये सब, ये लोग ये लोग या ये सब, ये सब। ठीक है, हा उलाई, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जो है वो ये है कि वाहिद और जमा मबनी है। मबनी के मतलब ये है कि रफ़ा में भी हाजा होगा, नसब में भी हाजा होगा, और जर में भी हाजा होगा। इसी तरह हाज़ी जो है रफ़ा में भी हाज़ी होगा, नसब में भी हाज़ी, और जर में भी हाज़ी। हाउलाए जो है, हाउलाए जो है ये रफ़ा में भी हाउलाए, नसब में भी हाउलाए, और उसमें। तो इसका पता कैसे चलेगा? ये हमें अगला लफ्ज़ बता रहा होगा कि ये नसब में है, ये जर में है, ये क्योंकि उसकी पहचान हमारे पास है। अच्छा, एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कर लें। हाजा हाजा हाजाने हाजी हाजा आज़ानी हाजाने हातानी, हाताने हाउला हाउलाई। ये करीब के, इसको कहते हैं करीब का इशारा। हम भी उर्दू में करीब को करीबी कहते हैं। बईद को भी हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बईद के माने दूर होता है। बईद माने दूर, जी दूर के लिए। अब दूर के जो इशारा है, जैसे हम का तिल का, तिलका जालिका, तिलका तिल का, दूर का इशारा, जालिका जालिका, जालिका तिल का। तिलका और उसका जो है क्या कहते हैं, दो के लिए जानिका जाने का, ताने का, वेरी गुड, जाने का, ताने का ताने का, जाने का, ताने का, और सबके लिए उलाइका उलाइका उलाइका, मर्द और उसके लिए दोनों। ये तो हो गया। एक बात और जो है, इशारा जो है, हमने जो 7 कैटेगरी पढ़ी थी मार्फा की,
اس کی ایک کیٹیگری میں سے یہ ہے اشارہ معرفہ ہوتا ہے. اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں اشارہ جو ہے معرفہ کی قسم سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک تو یہ اشارہ کیونکہ مبنی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس لیے جو طریقہ کار ہے ہم پہلے چیز کو دیکھتے ہیں, چاروں چیز دیکھیں گے. سنگل ہے, مذکر ہے, وہ جو چار ہم پڑھتے تھے چیزیں کیا پڑھتے تھے, جنس, عدد, اعراب اور وسعت. تو چار چیزوں میں ہم دیکھیں گے پہلے اس چیز کو, اس کے بعد ہم اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم یہاں پہ تھا کتابن, جب آپ دیکھیں کتابن نکرہ میں ہے کتابن, تو ہم اس کو کہیں گے کہ حاضہ ہمارے پاس جو ہے معرفہ ہے, اس لیے ہم پہلا کام کریں گے اس کو معرفہ بنائیں گے.